Hello guys, in this video lecture we'll be covering directing along its interaction, meaning and few definition given in the HSC syllabus report. Okay. Now after having done the three other functions, that is planning, where we used to formulate the plans and policies which we are supposed to achieve into the future. Correct? In organizing, we were supposed to decide the organizational structure, and in recruitment, we have seen that how the appropriate peoples have been recruited and selected to perform the designated task. Right? So all these functions, planning, whether we talk about planning, organizing, or staffing, all these three functions are until now which we have covered. All these functions are, if we talk in general, they are the thinking function. करेक्ट है. एक्चुअल में आपका जो वर्क स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है डायरेक्टिंग से. सो डायरेक्शन, अंडर डायरेक्टिंग, एग्जीक्यूशन ऑफ द फर्स्ट थ्री फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टेक्स प्लेस. करेक्ट है. एक्चुअल एग्जीक्यूशन वर्क जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है आपका डायरेक्टिंग से. आपने प्लानिंग में डिसाइड कर लिया क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज़ टू डू इट. करेक्ट है. ऑर्गेनाइजिंग में आपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर लिया. ठीक है. अंडर रिक्रूटमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लान और द टारगेट. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. वी रिक्रूटेड द एम्प्लॉयज़, हमने एम्प्लॉयज़ भी हायर कर लिए. करेक्ट है. वी हैव चूजन देम बाय अंडरगोइंग द इन नंबर ऑफ प्रोसेस, थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल टेस्ट लिया, एप्टीट्यूड टेस्ट लिया, उनका IQ टेस्ट लिया, बहुत सारे पर्सनल इंटरव्यूज़ हुए. ठीक है. एंड द वन हु जिसने इन सारे प्रोसेस को एकदम अच्छे से क्लियर किया, उसको हमने क्या किया, चूज़ किया अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हमने जॉब ऑफर की. करेक्ट. और उसको जॉब, पर्टिकुलर टास्क ऑफ जॉब उसको हमने दिया कि भैया यू हैव टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर टास्क ऑफ जॉब. ठीक है. नाउ आफ्टर हैविंग डन ऑल दिस, डायरेक्टिंग इज द फंक्शन जहाँ पे क्या होता है, एग्जीक्यूशन होता है. इट्स द फंक्शन over where the execution of the first three functions of management takes place, that is planning, organizing and staffing. So we can say that directing is the soul, right? We can say that directing is the soul of business organization, or directing is the soul of management function. So directing is all about telling the people, it is all about telling the people that what they are supposed to do, for what they are into the organization, उनको क्या करना है. करेक्ट है. So directing is telling the people that what to do, and after giving them the instructions, correct है, after giving them the instruction you'll have to see to it, correct है, कि whether they are doing the job in the right and the appropriate manner, correct, or not. So directing is telling the people what to do and seeing that they do it in to the best of their capabilities, right? मेक श्योर करना कि आपने जो डायरेक्शन पास ऑन किए हैं उसको आपका एम्प्लॉयज़ प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है. वो क्वालिटीज़ जिनको देख के, सी अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशनल क्वालिटी, हर एम्प्लॉय एक अपना यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर होल्ड करता है. करेक्ट है. जिससे चार्म होकर, जिससे इम्प्रेस होकर ऑर्गेनाइजेशन उसको अपॉइंट करता है. सो ईदर that particular employee is using his or her that particular special talent at the time of performing the job or the task or not. ये देखना भी किसका काम होता है, हमारे मैनेजर्स का काम होता है अंडर डायरेक्टिंग फंक्शन. करेक्ट है. सो डायरेक्टिंग इज all about passing the clear instructions to the employees regarding what to do and seeing that they do it in the best of their capabilities. Directing is all about passing the clear instructions to the employees and seeing that they do it in the best of their capabilities. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. Now directing is related to giving the instructions to the people. यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैनेजर एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग द डायरेक्शन फंक्शन क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करता है. फिर नाउ देर आर डिफरेंट वेज टू पास द इंस्ट्रक्शन. करेक्ट है. अलग अलग एम्प्लॉय को अलग अलग तरीके से आपको इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करनी होती है. इंस्ट्रक्शंस आर गोइंग टू बी द सेम, but you will have to pass it on to the employees in a different way depending upon the potential skill and the understanding of that particular employee, right? उस employee का कितना understanding है उसको ध्यान में रखते हुए आप क्या करते हो उसके accordingly. Now कुछ employees ऐसे होते हैं, correct, जिनको who have certain problem in communication or they are not able to understand English properly.
करेक्ट है. तो अगर आप 100% इंग्लिश में डायरेक्शंस पास ऑन करोगे तो दे आर गोइंग टू फेस सम डिफिकल्टीज एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज़ करोगे तो मे बी देयर इज पॉसिबिलिटी कि लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉय जिनको आप इंस्ट्रक्शन पास ऑन करो वो समझ ना पाए. सो you'll have to pass on the instruction. At the time of passing the instruction, you'll have to keep into the mind that depending upon the knowledge and the capability of employee, आप क्या करोगे उसको उस particular area में जाके instruction pass on करोगे. By passing the clear instructions, when you pass the clear instruction, when there is a proper communication, healthy communication between manager and the employees, correct? When employees are able to understand or when employees are able to connect themselves with the manager, ठीक है, with the management. So by passing the clear instructions and properly and healthy communication with the employees, अगर हमारा मैनेजर ये सब करता है अंडर डायरेक्शन फंक्शन, he'll be able to achieve the organizational goal in the most efficient manner. अगर हमारा मैनेजर ये सब करता है तो वो बेस्ट और मोस्ट एफिशिएंट मैनर में अपना गोल क्या कर पाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है उसको अचीव कर पाएगा. करेक्ट है. नाउ इन ऑर्डर टू इंश्योर, ठीक है, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग फंक्शंस, बाकी के जो फंक्शंस हैं, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग फंक्शन, इनको प्लान करने के लिए, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने के लिए आप जो आपने जो इतने सारे एफर्ट्स लिए थे, करेक्ट है, और जो इतने ज़्यादा इफेक्टिवनेस आपने वहाँ पे दिखाया था, ये सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा अगर आप डायरेक्टिंग को क्या नहीं करोगे, एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट नहीं करोगे. सो इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग फंक्शन एफर्ट्स do not go waste, correct है, we'll have to implement the directing function effectively. हमको क्या करना होगा, हमको directing function effectively implement करना होगा just in order to make sure कि हमने planning, organizing और staffing में जो efforts लिए थे वो waste ना हो जाएं. correct है. by guiding, by motivating and by inspiring the employees, जब आप अपने employees को guide करते हो, जब आप अपने employees को motivate करते हो, correct, as and when needed, जब आप उनको inspire करते हो, उनकी activities को supervise करते हो, जब आपकी activities या आपकी performance supervise होता है ना, तो आपको वो डर नहीं रहता कि यार मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होता है the moment you'll go wrong, there is someone to recorrect you, right? So till the time आपको कोई point नहीं कर रहा है, nobody is raising a finger on you, you'll have to be in, आपको ये समझ लेना है कि आप सेफर साइड में एक राइट डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहे हो, क्योंकि जैसे ही आप कुछ गलत करोगे आपका मैनेजर जो आपको सुपरवाइज कर रहा है वो उसी पॉइंट पे, उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको क्या करेगा, स्टॉप कर देगा. सो दिस इज वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, यू हैव टू डू इट इन दिस वे. करेक्ट है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली आपको सुपरवाइज कर रहा है, तो वो एक डर आपके दिमाग से निकल जाता है, परफॉर्मेंस प्रेशर जो होता है, बिकॉज यू नो दैट एट एनी पॉइंट इफ यू गोइंग रॉन्ग, you're going wrong, your manager, your supervisor is there to recorrect you. correct है. so इससे क्या होता है, आपका परफॉर्मेंस enhance होता है. right now ये जो डायरेक्टिंग है ये किसी एक लेवल पे होती है, ऐसा नहीं होता है कि टॉप पे होती है, मिडिल पे नहीं होती है, लोअर पे होती है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है. इट इज़ इनिशिएटेड, ये स्टार्ट होता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट से. इट इज़ इनिशिएटेड, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट से. कैसे, वो प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाते हैं एंड देन दे पास ऑन द इंस्ट्रक्शंस टू द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर्स दैट व्हाट दे आर सपोज टू डू. मैनेजर्स को एम्प्लॉयज से क्या करवाना है, कैसे करवाना है, विद इन व्हाट टाइम फ्रेम करवाना है, कितना इफेक्टिव और एफिशिएंट रिजल्ट उनको चाहिए, किसको, टॉप मैनेजमेंट को. करेक्ट है. तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज को फ्रेम करता है, देन दे convey the information and communicate regarding the same with the managers. ठीक है. Then the managers belongs where, manager belongs to the middle level into the organization. Then the managers are the one who passes on the information. Correct है. Then the managers are the one who passes on the information to the lower level of management. So manager passes on the same direction, same kind of information, ठीक है, to the employees in order to achieve the goals. तो ये हायरार्की है, टॉप से इनिशिएट होती है एंड इट गोज डाउनवर्ड. फ्लो क्या होती है, डाउनवर्ड साइड में होती है, टॉप से मिडिल, मिडिल से लेवल. करेक्ट है. ये क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की होगी. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मैनेजर प्लेज द रोल ऑफ डायरेक्टर by giving the correct information, by passing the correct instructions, by guiding the employees and sorting out their difficulties as and when they need it. द मोमेंट प्रॉब्लम अराइज हुई, हमारा मैनेजर वहाँ पे आ जाता है. जैसे जिन प्रकट होता है ना, द मोमेंट यू आर गोइंग टू
वो लैम्प को आप ऐसे करते हो तो उसमें से क्या निकल जाता है, तुरंत जिन्नी निकल जाता है, और जो भी विश आप मांगते हो पूरी कर देता है. इट इज़ हाईली इम्प्रैक्टिकल एंड अनलॉजिकल, आई नो, बट स्टिल यार हमने बचपन में ये स्टोरीज देखी हैं. करेक्ट है. सो इन द सेम वे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तुरंत हमारा मैनेजर वहाँ पे आ जाता है. हमारे एम्प्लॉयज़ को कोई भी प्रॉब्लम होती है, तुरंत मैनेजर आ जाता है. और हमारा मैनेजर जो होता है वो हमारे एम्प्लॉयज़ को उनकी प्रॉब्लम का बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन प्रोवाइड करता है. सो अगर हम डायरेक्टिंग की बात करें तो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. करेक्ट है. क्यों कंटिन्यूस है? टिल द टाइम ऑर्गेनाइजेशन इज़ देयर, जब तक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करेगा आपको डायरेक्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी. करेक्ट है. क्योंकि जब तक ऑर्गेनाइजेशन है आप प्लान करोगे, आप प्लान को इम्प्लीमेंट करोगे. करेक्ट है. प्लान करोगे तो इम्प्लीमेंट करने के लिए डायरेक्शंस पास ऑन करोगे. सो इट विल गो ऑन टिल द टाइम ऑर्गेनाइजेशन इज़ देयर. सो डायरेक्टिंग की जब हम बात करते हैं तो डायरेक्टिंग क्या है हमारा? डायरेक्टिंग हमारा एक कंटिन्यूस फंक्शन है. डायरेक्टिंग क्या है? इट इज़ द सोल ऑफ द मैनेजमेंट. सो डायरेक्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लाइफ स्पार्क ऑफ एन एंटरप्राइज. आपके ज़िंदगी में जो एक चमक ले आता है ना, जो आपके ज़िंदगी में एक खुशी ले आता है. करेक्ट है. वैसे ही हमारे एंटरप्रेन्योर, हमारे बिजनेस के लाइफ में स्पार्क लाने का काम कौन करता है? हमारा डायरेक्टिंग फंक्शन करता है. आप देख रहे हैं एक आदमी आगे चल रहा है और उसके पीछे सब लोग सेम लाइन में उसको फॉलो कर रहे हैं. राइट. सो जो ये सबसे आगे चल रहा है, द रेड वन, हमारा ये जो रेड वाला बंदा है, तो ये कौन है? हमारा मैनेजर है. एंड ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर शोइंग द डायरेक्शन. ये जो डायरेक्शन दिखाएगा उसी डायरेक्शन को, उसी पाथ को हमारे बाकी के एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे? फॉलो करेंगे. उसी डायरेक्शन को हमारे बाकी के एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे? फॉलो करेंगे. तो ये सही डायरेक्शन दिखाएगा, हमारे एम्प्लॉयज़ सही डायरेक्शन में जाएंगे. ये रॉन्ग डायरेक्शन दिखाएगा, हमारे बेचारे एम्प्लॉयज़ रॉन्ग डायरेक्शन में जाएंगे. सो डायरेक्टर इज़ द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग द क्लियर इन्फॉर्मेशन टू दी हमारे एम्प्लॉयज़. सो डायरेक्टिंग इज़ द की मैनेजरल फंक्शन. सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का. इट इज़ अ मैनेजरल प्रोसेस विच टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. मैंने बताया था कंटिन्यूस है. सिंस दिस फंक्शन डील्स विद पासिंग द इंस्ट्रक्शन टू द ह्यूमन फोर्सेज. ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या करता है? ये ह्यूमन फोर्स को, लेबर फोर्स को इंस्ट्रक्शन पास ऑन करता है. आप एक मशीनरी को बोलोगे मशीनरी गेट अप एंड गो दे, इंस्टॉल योर सेल्फ ओवर दे. मशीनरी कुछ करेगा? नहीं करेगा भैया. वो सुन नहीं सकता, वो समझ नहीं सकता. आप इंस्ट्रक्शंस किसको पास ऑन करते हो? आप ह्यूमन बींग्स को इंस्ट्रक्शन पास ऑन करते हो. यू विल पास ऑन द इंस्ट्रक्शन टू वन ऑफ योर एम्प्लॉय कि इसको यहाँ से निकालो, अनइंस्टॉल करो और दूसरी जगह जाके इंस्टॉल करो. देन योर एम्प्लॉय इज गोइंग टू डू द सेम फॉर यू. करेक्ट है. सो ये फंक्शन जो है डायरेक्टिंग का, ये किससे रिलेटेड है? ह्यूमन फोर्स से रिलेटेड है. ये किसको इन्फॉर्मेशन पास ऑन करता है? ह्यूमन फोर्स को इन्फॉर्मेशन पास ऑन करता है. एंड व्हेन द वर्ड कम्स ह्यूमंस, भाई लोग, human beings are completely, human nature, human behavior is completely complex and unpredictable. आप नहीं बोल सकते कि कब आपका मूड, अभी आपका मूड अच्छा है, अभी आपका मूड ख़राब हो जाएगा. कल नींबू का अचार खाया, आज नींबू का अचार आपको पसंद नहीं आएगा. हमारा मूड स्विंग इज़ कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. करेक्ट है. सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम डायरेक्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. करेक्ट है. हमारा मैनेजर हमारे एम्प्लॉयज़ को समझता है. करेक्ट है. इमोशनल लेवल पे जाके, ठीक है, ही अंडरस्टैंड्स देम फर्स्ट और फिर अकॉर्डिंगली उनको क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करता है. राइट. नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड डायरेक्टिंग विद सम ऑफ द डेफिनेशंस. करेक्ट है. एकदम रंगीन पेज आ गया हमारा. ब्राउन, वाइट, ब्लू, येलो एंड द वर्डिंग्स आर इन रेड. चलो कोई नहीं, ठीक है. सो फर्स्ट डेफिनेशन हैज़ बीन गिवन बाय अर्नेस्ट डेल. सो अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट डेल, व्हाट इज डायरेक्टिंग? He defines directing as telling people what to do. लोगों को बताना. लोगों को मतलब किसको? सबको नहीं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे एम्प्लॉयज़ को. टेलिंग पीपल, पीपल मतलब कौन? हमारे एम्प्लॉयज़ हु आर एंगेज्ड इनटू दी इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. करेक्ट. इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश आवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो हमारे साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं. सो अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट डेल, डायरेक्टिंग इज टेलिंग द पीपल व्हाट टू डू. क्या करना है. करेक्ट है. और उसके बाद उनको छोड़ देना नहीं. तुमको ये चीज़ करनी है और उसके बाद तुमको छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता. इट इज़ अबाउट टेलिंग द पीपल दैट व्हाट टू डू एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू evaluate their performance. You will have to supervise their performance. Correct है. Seeing that they do it to the best of their ability. इंस्ट्रक्शन पास ऑन करना और उसके बाद सुपरवाइज करना, मॉनिटर करना कि आपने जो इंस्ट्रक्शंस पास ऑन किए थे उस इंस्ट्रक्शंस के साथ अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपने इनिशिएटिव को ऐड ऑन करके आपका एम्प्लॉय गिवन टास्क को बेस्ट पॉसिबल मैनर में इम्प्लीमेंट करता है या नहीं करता है. क्या
अर्नेस्ट डेल के अकॉर्डिंगली क्या है डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग इज ऑल अबाउट पासिंग द इंस्ट्रक्शंस टू योर एम्प्लॉयज एंड आफ्टर दैट monitoring and supervising that your employees are implementing the direction along with their creativity and initiatives, correct है, in the best possible manner. It includes making assignment, correct है, एक्सप्लेनिंग प्रोसीजर, असाइनमेंट्स बनाना अपने एम्प्लॉयज़ के लिए. अपने ऑर्गेनाइज टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है ना, वो जब प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाती है तो वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाते हैं. तो टॉप लेवल मिडिल लेवल को बता देंगे कि भैया ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ये हमको साल में इतना टर्नओवर चाहिए. नाउ इट इज़ द ड्यूटी ऑफ आवर मैनेजर्स कि वो अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए क्या करें, ऐसी प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाएं जिसके हेल्प से ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या हो, इजीली अचीव हो जाए. सो हमारे मैनेजर्स असाइनमेंट बनाते हैं, हमारे डिपार्टमेंट का टारगेट क्या है, इस टारगेट को अचीव करने के लिए कौन से एम्प्लॉय को कौन सा टास्क असाइन करना है. एक बार वो आपका पर्टिकुलर प्लान चॉक आउट हो गया, फिर आप उन्हीं प्लान्स को अपने एम्प्लॉयज़ को, सेट एम्प्लॉयज़ को क्या करते हो, एक्सप्लेन करते हो और उसके बाद देखते हो कि अगर कोई मिस्टेक है, करेक्ट, सीइंग दैट मिस्टेक्स आर करेक्टेड. अगर कोई लैकिंग ब्रिक्स है तो उसको उधर एज एंड व्हेन द प्रॉब्लम अराइज हमारा सुपरवाइजर, हमारा मैनेजर उसको तुरंत उसी जगह पे क्या करता है, सॉर्ट आउट कर देता है. एंड प्रोवाइडिंग ऑन द जॉब इंस्ट्रक्शन एंड of course issuing the order, करेक्ट है. समटाइम्स आपको अथॉरिटेटिव भी बनना होता है. हर बार सिर्फ फ्रेंडली बनना, मोटिवेटर बनना, गाइड बनने से काम नहीं चलता है. इफ़ नीडेड, इफ़ द एम्प्लॉयज़ आर नॉट एबल टू अकम्प्लिश द टास्क विद इन द गिवन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम इन द फर्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट क्वार्टर में अलॉन्ग विद बीइंग फ्रेंडली आपको थोड़ा सा क्या बनना पड़ेगा, अथॉरिटेटिव भी बनना पड़ेगा. सो एज एंड व्हेन नीडेड यू आर सपोज टू पास ऑन द ऑर्डर्स टू योर एम्प्लॉयज़, करेक्ट है. ये किसका डेफिनेशन है, अर्नेस्ट डेल का. तो अर्नेस्ट डेल के अकॉर्डिंगली हमारा जो डायरेक्टिंग का फंक्शन है वो हमारे मॉम्स के जैसे है, समटाइम्स सॉफ्ट, समटाइम्स टू डिफिकल्ट टू क्रैक, करेक्ट है. मॉम्स के मूड्स कैसे होते हैं, कभी मम्मी बहुत खुश हो जाती हैं, कभी छोटी छोटी सी बात पे मम्मियों को बहुत गुस्सा आ जाता है. तो इट इज़ लाइक आ मदर्स मूड, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे डेफिनेशन पे. दूसरा डेफिनेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू थियो हाइमन है, करेक्ट. अभी हमारे थियो हाइमन क्या बोलते हैं, according to Theo Hyman, directing consists of the process. According to Theo Hyman, directing क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस जहाँ पे भी आ जाता है समझ लो वो एक लंबा प्रोसीजर होता है विच इज़ नेवर एंडिंग टिल द टाइम ऑर्गेनाइजेशन इज देयर, ये प्रोसीजर चलता रहेगा. सो डायरेक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है, करेक्ट है. और एक ऐसी मतलब यहाँ पे आप ऐसा एक ऐसे प्रोसेस और टेक्निक्स को अडॉप्ट करते हो जहाँ पे आप क्या करते हो, इंस्ट्रक्शंस इशू करते हो. सी टेक्निक्स मीन्स टेक्निक्स यूटिलाइज्ड इन इशूइंग द इंस्ट्रक्शन. अभी मैंने बताया था ना मीनिंग में कि हर एम्प्लॉय का अपना अलग अलग बिहेवियर होता है, करेक्ट है. सो एज पर द नॉलेज पोटेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़, करेक्ट है, एज पर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एम्प्लॉय आप क्या करते हो, उसको इंस्ट्रक्शन पास ऑन करते हो. तो टेक्निक का मतलब वही समझना कि कौन से एम्प्लॉय को किस तरीके से. कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनके साथ आप सॉफ्ट स्पोकन रह के भी बात करोगे ना, दे आर गोइंग टू अकम्प्लिश द टास्क. कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जिनको जब तक आप मोटिवेट ना करो ना टू द नेक्स्ट लेवल तब तक वो आगे नहीं जाते. कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जिनकी थोड़ी सी इंसल्ट करनी पड़ती है और ना काम निकलवाने के लिए या उनसे काम करवाने के लिए उनको टाइम बिंग थोड़ा सा इंसल्ट कर दो या थोड़ा सा उनको टॉन्टिंग कर दो, वो बंदा एकदम मोटिवेट होकर जोश में आपका काम कर देता है. सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एवरी एम्प्लॉय, करेक्ट है, आपको क्या करना होता है, इंस्ट्रक्शन इशू करना होता है. तो दैट इज द टेक्निक यू आर गोइंग टू यूज विद द डिफरेंट एम्प्लॉयज़. And after issuing the instruction, making sure that the operations are carried on as originally planned. सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस आपके प्लान के अकॉर्डिंगली ही आपका एम्प्लॉय क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, तभी तो आप अपना गोल अचीव कर पाओगे ना. अगर आपने इंस्ट्रक्शन कुछ और पास ऑन किया, आपने बोला है कि भैया शाम को मुझे पकौड़े खाने हैं, ठीक है, बेसन और प्याज के पकौड़े खाने हैं, और पता चला मम्मी ने आलू की भुजिया बना के रख दी. बहुत डिफरेंस है भैया, आलू के पकौड़ों और प्याज के पकौड़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, करेक्ट है. सो इंस्ट्रक्शन पास ऑन करने के बाद देखना कि एम्प्लॉय को अगर पकौड़े बनाने बोले गए हैं तो एम्प्लॉय प्याज के पकौड़े बना रहा है या बेसन के पकौड़े बना रहा है. यही तो मतलब आपका जो टारगेट है वो तभी अचीव होगा ना जब आपका एम्प्लॉय आपके डायरेक्शन को राइट मैनर में अचीव करेगा, ठीक है. तो थियो हाइमन हो गए, चलो टाटा बाय बाय थियो हाइमन. अब आते हैं उर्विक और ब्रिज के डेफिनेशन पे. अकॉर्डिंग टू देम सबसे एकदम हमारा कोरा कागज़ वाला डेफिनेशन है ना. फर्स्ट वाला इतना कलरफुल, सेकंड वाला भी एकदम इतना ब्राइट अट्रैक्टिव कलर था. ये भैया कटी पतंग हो गए, कोरा कागज़, इनका जीवन कोरा कागज़ कोरा ही रह गया. चलो ठीक है, जोक्स अपार्ट, स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन. डायरेक्टिंग इज द गाइडेंस. अंडर डायरेक्टिंग हमारा मैनेजर एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द डायरेक्टिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू ये पर्टिकुलर भाई साहब, ठीक है,
हमारा डायरेक्टर गाइड करता है हमारे एम्प्लॉयज़ को, इंस्पायर करता है, करेक्ट है। और ये तभी पॉसिबल होगा, आप किसी को गाइड या इंस्पायर तभी कर पाओगे या कोई आपकी बात तभी सुनेगा जब आप में लीडरशिप क्वालिटी होती है। द लीडरशिप ऑफ दोज मैन एंड वुमेन, आप उनको लीड करते हो, करेक्ट है, उनको इंस्ट्रक्ट करते हो, उनको गाइड करते हो, ठीक है, जो कहाँ कंस्टिट्यूट करते हैं, दैट कंस्टिट्यूट द रियल कोर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजमेंट, जिसके शोल्डर्स पे मैनेजमेंट फंक्शंस को, मैनेजमेंट गोल्स को अचीव करने की रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। कौन होते हैं? हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, जो ग्रास रूट लेवल पे हमारे मैनेजर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाता है। सॉरी, टॉप लेवल दैट मीन्स हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हो जाता है यार कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, चलो फिर से, हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाता है। मैनेजमेंट अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाता है इन सच अ वे दैट इट वुड गोइंग टू हेल्प आउट टू अचीव द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, और उन्हीं प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को वो डायरेक्ट करता है, इंस्ट्रक्ट करता है एम्प्लॉयज़ को। बट एट द एंड इट इज़ आ एम्प्लॉयज़ जो उस प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को क्या करते हैं, ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हैं। सो ओविड ब्रेक के अकॉर्डिंगली डायरेक्टिंग के अंडर हमारा ऐसा मैनेजर जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, वो क्या करता है, गाइड करता है, इंस्पायर करता है। तो दोस्त अभी यहाँ पे हम मैन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में दोनों ही काम करते हैं, करेक्ट है, तो जेंडर बाइफिकेट नहीं करते हैं हम, ठीक है। तो लीडरशिप ऑफ दोस्त मतलब हमारे एम्प्लॉयज़, ठीक है, जिनके शोल्डर्स पे रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की, जिनके शोल्डर पे रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर द अचीवमेंट ऑफ द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो नाउ वी हैव डन विद द 3 ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ डायरेक्टिंग. In the upcoming video we're going to come with the importance of directing. Go through with the previous lectures so that you'll be able to connect the because each and every function is connected with each other. आप इसको आइसोलेशन में स्टडी नहीं कर सकते. So if you want to understand directing thoroughly in depth, first you'll have to acquire the knowledge of the planning, organizing and staffing. Correct? Thank you.